تو پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک دادا تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر جناب ابو طالب کی پرورش میں پیغمبر آئے اور جناب ابو طالب نے اپنی پرورش کا حق ادا کیا، چچا ہونے کا حق ادا کیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ابو طالب بہت غریب تھے، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود پہلے حضور کو کھانا کھلا لیتے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے۔ پہلے حضور کو کپڑا پہناتے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کپڑا پہناتے۔ بڑی محبت سے جناب ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، اور پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ پیغمبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، اور 40 سال عمر شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی۔ 40 سال کے درمیان پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ خدا کا حکم نہیں آیا تھا، ورنہ میرے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنی پیغمبری کا اعلان نہیں کیا۔ 40 سال تک مکے کی دھرتی پہ خاموش زندگی گزارا، اور وہ 40 سال درمیان میں پیغمبر نے قوم کے سامنے اپنا ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ عرب والے کہتے تھے، اے لوگو، ہم نے دنیا میں بہت انسانوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ محمد کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، محمد کو ہم نے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور سچائی اور امین ہونے کی گواہی کفار مکہ دے رہے تھے۔ 40 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا، اے پیغمبر، اب اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے ڈرائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے 40 افراد کی دعوت لی، سب کو بلایا۔ 40 لوگ حضور کے خاندان کے تھے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے ان 40 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ دعوت کھلانے کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کر کے بتایا، اے لوگو، تمہارے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میری سچی آواز سنو، میں اللہ کا نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، وہی عرب کے لوگ جنہوں نے میرے آقا کو صادق الوعد الامین کہا تھا، جنہوں نے کہا تھا، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے کبھی آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، وہی لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سارے کفار و مشرکین وہاں پر جمع تھے، اور جاتے ہوئے کہنے لگے، اے محمد ابن عبداللہ، کیا یہی بات سنانے کے لیے بلایا تھا؟ ہم نے تو یہ سمجھا تھا تم ہمارے فائدے کی بات کرو گے، ہم نے تو یہ سمجھا تھا تم ہمارے تجارت کی بات کرو گے، کیا ہم اپنے باپ دادا کا پرانا دین دھرم چھوڑ کر نیا دین قبول کر لے؟ سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، کسی نے پیغمبر کی بات نہ مانی، کوئی ایمان نہیں لایا۔ میرے رسول کا دل غمگین ہوا جب سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ اللہ اکبر! اسی مجمع میں ایک 8-10 سال کا بچہ تھا جس نے مجمع کے بیچ میں سے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اور کہا تھا، اے محمد ابن عبداللہ، اگر ابو جہل آپ کی بات نہیں مانتا ہے نہ مان
माने, उतबा आपकी बात नहीं मानता है ना माने, शैबा आपकी बात नहीं मानता है ना माने, कुफारो मुशरिकीन आपकी बात नहीं मानते हैं ना माने। ए पैगंबर, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, आपकी हर कही हुई बातों को हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। मालूम है उसी बच्चे का नाम तारीख में हजरत अली बताया गया है, इसीलिए फुकहा फरमाते हैं बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम की तबलीग का सिलसिला जारी रहा, लोग वहां से उठकर चले गए, लेकिन तारीख बताती है कभी अबू बकर कलमा पढ़ रहे हैं, कभी अली कलमा पढ़ रहे हैं, कभी ज़ैद बिन हारसा कलमा पढ़ रहे हैं, कभी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कलमा पढ़ रही हैं। इस्लाम के दामन में लोग आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हुजूर के दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, और इस कदर उन्होंने दुश्मनी की है कि तारीख़ मक्का गवाह है, बल्कि पैगंबर खुद ही फरमाते हैं दीन फैलाने में जितना मुझे सताया गया है उतना किसी नबी को नहीं सताया गया है। तारीख उठाकर देखिए, मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए। जब पैगंबर ताइफ पहुंचे थे, वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग किया था, कुफारे मुशरिकीन ने इस कदर पैगंबर पे संगबारी किया था कि मेरे नबी का चेहरा लहू लहान हो गया था, हुजूर की जूती मुबारक खून से भर गई थी। अल्लाह अकबर। इस्लाम बढ़ता रहा, मेरे नबी इस्लाम की तबलीग करते रहे, हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए गए, हुजूर के घर के सामने जालिम अपने घर का कूड़ा करकट ला करके फेंक जाते थे। यहीं तक बस नहीं किया गया, पैगंबर जब सजदा करते हैं ऊंट की ओझड़ी ला करके मेरे नबी के सर पे डाल दिया जाता है। यहीं तक बस नहीं किया गया मुसलमानों, मेरे नबी का मक्के में सोशल बाइकाट किया गया था, नबी से कोई बोल नहीं सकता था, नबी के कोई करीब जा नहीं सकता था। एक कैद खाने में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी गुजार रहे थे। इतना भयानक माहौल था खुदा की कसम कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घाटी को, उस कैद खाने को और उस मंजर को याद करते थे, मेरे आका तड़प जाते थे। लेकिन ऐ लोगों, मेरे नबी इस्लाम फैलाने के लिए दुनिया में आए थे, पैगंबर ने उन तमाम मसाइबो आलाम को बर्दाश्त कर लिया, इस्लाम की तबलीग करते रहे। अबू जहल हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन था, इतना बड़ा दुश्मन था कि एक दिन उतबा शैबा को साथ लेता है और कहता है कि चलो आज मोहम्मद अरबी को चल करके तकलीफ देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की गली से गुजर रहे थे, अबू जहल सामने आ गया। आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में नाजेबा कलिमात कहता है, पैगंबर ने कोई जवाब न दिया। हुजूर आगे बढ़ गए, लेकिन उसने यहीं तक बस नहीं किया, आगे बढ़ा और हुजूर के सीने पे अपना यूं हाथ मारा, लेकिन पैगंबर ने कोई जवाब न दिया। मेरे नबी समझ गए थे ये झगड़ा करने के इरादे से आया हुआ है। पैगंबर आगे निकल गए, लेकिन उसने दुश्मनी की हद कर दी। अबू जहल ने जमीन से एक पत्थर उठाया है और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पर मारा है। पत्थर जैसे लगा है, हुजूर का पेशानी फटा है, खून निकला है, पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। आज जब मेरे नबी को पत्थर मारे गए हैं, पूरे मक्के में शोर मच गया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अबू जहल ने पत्थर मारा है। आज जब हुजूर को पत्थर मारे गए मुसलमानों, तो मेरे नबी किसी मक्के के सरदार के दरवाजे पे नहीं गए। आज जब हुजूर को पत्थर मारे गए तो किसी रिश्तेदार के दरवाजे पे नहीं गए, हजरत आमिना के घर में नहीं गए, अब्दुल्ला की चौखट पे नहीं गए। जब हुजूर को पत्थर मारा गया है, सीधे अल्लाह के घर खाने काबा पहुंचते हैं। खाने काबा पहुंचने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख देते हैं और रो रो करके अपने मालिक से फरियाद करने लगते हैं। रो रो कर परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे। अल्लाह अकबर। उधर मक्के में शोर मचा है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पत्थर मारा गया है। हुजूर के सगे चचा हजरत अमीर हमजा, जो अभी कलमा नहीं पढ़े थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो कहीं शिकार के लिए गए थे।
शिकार खेल करके जैसे ही वापस आते हैं और जैसे ही मक्के की सरहद में दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि चंद औरतें बैठती हैं। जब उन औरतों ने जनाबे अमीरे हमजा को देखा तो कहने लगी, ओ देखो अमीरे हमजा को, ये कितना इतरा कर चल रहा है, ये कितना अकड़ अकड़ कर चल रहा है। अगर इसको मालूम हो जाता कि इसके भतीजे को मक्के में पत्थर मारा गया है तो इतना अकड़ कर नहीं चलता, इतना इतरा कर नहीं चलता। जनाबे अमीरे हमजा चलते थे तो जरा अपने बाहों को यूं फैला करके सीना तान करके चला करते थे। जैसे ही उन औरतों ने कहा कि वो देखो अमीरे हमजा को, अगर इसको मालूम हो जाता इसके भतीजे को मक्के में पत्थर मारा गया है तो इतना इतरा कर नहीं चलता, इतना अकड़ कर नहीं चलता। उन औरतों की आवाज हजरत अमीरे हमजा के कान के पर्दे से टकराई है। हजरत अमीरे हमजा का बढ़ता हुआ कदम अचानक रुक गया है। उन औरतों के पास गए हैं अमीरे हमजा और कहते हैं, ए औरतों ये बताओ किसने हमारे भतीजे को पत्थर मारा है। उन औरतों ने कहा, हमने सुना है कि अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को पत्थर मारा है। जनाबे अमीरे हमजा जैसे इतना सुनते हैं खानदानी खून जोश मारने लगता है और फिर वहां से चले हैं। लोगों से पूछा है, ऐ लोगों ये बताओ कि अबू जहल कहां पर मिलेगा। किसी ने कहा कि फला मकाम पर अबू जहल बैठा है। जनाबे अमीरे हमजा गुस्से में चेहरा सुर्ख था। उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां पे अबू जहल बैठा था। वहां पहुंचने के बाद हजरत अमीरे हमजा ने मियान से तलवार निकाला है और तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे ऐसा मारा है कि उसका सर फटा है, खून निकला है। और हजरत अमीरे हमजा ने एक तारीखी जुमला कहा था ए अबू जहल सुन ले, अगर मेरा भतीजा यतीम है तो ये ना समझना कि वो लावारिस है, अभी भी उसका चचा जिंदा है। अगर हाथ उठाओगे तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, आंखें उठाओगे तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएगी। हजरत अमीरे हमजा वहां से चले हैं। लोगों से पूछा, ऐ लोगों मेरे भतीजे को किसी ने देखा है तो बता दो। किसी ने कहा, हमने आपके भतीजे मोहम्मद को हरम की तरफ जाते हुए देखा है। किसी ने कहा, हमने आपके भतीजे को मक्के की तरफ जाते हुए देखा है। किसी ने कहा कि हमने आपके भतीजे मोहम्मद को खाने काबा में आंसू बहाते हुए देखा है। जनाबे अमीरे हमजा वहां से सीधे खाने काबा पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि पैगंबर अपनी मुकद्दस पेशानी को जमीन पर रख करके रो रो कर अपने मालिक से फरियाद कर रहे हैं। हजरत अमीरे हमजा वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, भतीजे सर उठाओ, हमने तुम्हारा बदला ले लिया। लेकिन पैगंबर ने सर न उठाया। कहा, भतीजे सर उठाओ, हमने तुम्हारा बदला ले लिया। मेरे आका सजदे से सर उठाते हैं, यूं खड़ा हो जाते हैं। जनाबे अमीरे हमजा ने अपने बाहों को फैला दिया और कहा, मेरे भतीजे मेरे कलेजे से लग जाओ, इसलिए कि हमने तुम्हारा बदला ले लिया है और खुश हो जाओ, अबू जहल को हम मार कर आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा का हाथ उठा हुआ यूं नीचे कर दिया और रो करके मेरे आका जनाबे अमीरे हमजा से कहते हैं, ओ चचा, आज मेरा कोई चचा होता तो आज मक्के में मुझे पत्थर नहीं मारा जाता। काश मेरी माँ आमीना जिंदा होती तो आज तन्हा हरम में बैठकर आंसू नहीं बहाता। आज मेरे वालिद जिंदा होते तो आज इस कदर मुझे पत्थर से नहीं मारा जाता। हजरत मोहम्मद अरबी की बात सुन करके जनाबे अमीरे हमजा रोने लगते हैं और जबरदस्ती मेरे आका को अपने कलेजे से लगा लेते हैं। कहते हैं, भतीजे खुश हो जाओ, हमने तुम्हारा बदला ले लिया। मेरे आका फरमाते हैं, अरे ओ चचा, अरे मोहम्मद बदला लेने से नहीं खुश होता है, मोहम्मद बदला लेने के लिए नहीं आया है। अमीरे हमजा कहते हैं, ओ भतीजे फिर किस चीज से तुम खुश हो जाते हो। मेरे आका फरमाते हैं, ओ चचा, अगर मुझे खुश करना है तो मुझ पर ईमान ले आओ, उसकी इबादत करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उसको खुदा मानो जिसको मैं खुदा मानता हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ। ए खुदाए
वहदहू ला शरीक के आगे झुक जाओ। जैसे ही पैगंबर ने इतना कहा है, हजरत अमीर हमजा मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से लिपट गए हैं और कहा कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल करिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, इस्लाम में दाखिल हुआ है। मेरे नबी का चेहरा चमक गया और फिर मेरे आका खाने काबा की तरफ दौड़ते हैं। खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके अपने कलेजे से लगाया है, अपने सर को आसमान की तरफ उठाया है। मेरे आका रो के कहते हैं, ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक शेर दे दिया है, अब मोहम्मद की झोली में दूसरा शेर भी अता फरमा दे। मोहम्मद की झोली में दूसरा शेर भी अता फरमा दे। इस्लाम बढ़ता रहा, इस्लाम बढ़ता रहा। हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ लिए हैं। अबू जहल एंड कंपनी बड़ा परेशान हो गया, कहा इस्लाम को कैसे रोका जाए। जो भी मोहम्मद की बात सुनता है फौरन उसका दीन धर्म कबूल कर लेता है। तो अबू जहल ने उतबा बिन रबिया को बुलाया। ये उतबा बिन रबिया, इसको कहते थे लोग इसके बात में जादू है और बात करने का बड़ा मलिका था उसके पास, बड़ा अक्लमंद और ज़हीन था उतबा बिन रबिया। कुफार व मुशरिकीन ने उतबा बिन रबिया को बुलाया और कहा, ए उतबा बिन रबिया, तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम्हें बात करने का तरीका और सलीका मालूम है। ऐसा है कि तुम मोहम्मद अरबी के पास जाओ, जा करके उनको समझाओ कि अगर वो सरदारी चाहते हैं तो हम उनको अपना सरदार मानने के लिए तैयार हैं। अगर वो मालो दौलत चाहते हैं तो हम दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में ला करके ढेर कर देंगे, लेकिन नए दीन की तबलीग न करे, हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहे, हमारे खुदाओं की बेइज्जती न करे और नए दीन की तबलीग का सिलसिला बंद कर दे। उतबा बिन रबिया मेरे आका के पास आया और आके कहता है, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ऐसा है कि इस दीन जो आप दीन लेकर के आए हैं, इस दीन से अगर सरदारी हासिल करना चाहते हैं तो इस दीन की तबलीग न करें, हम आपको अपना सरदार मानने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी हसीना से निकाह करना चाहते हैं तो आपका निकाह करने के लिए हम तैयार हैं। अगर इस दीन से मालो दौलत जमा करना मकसूद है तो फिर दुनिया की सारी दौलत आपके कदमों में लाकर ढेर कर देंगे। अगर आप बादशाही चाहते हैं तो हम आपको बादशाह मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा रा इस नए दीन की तबलीग न करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सुनो, जो तूने पेशकश की है मेरे सामने, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। न मुझे सरदारी चाहिए, न बादशाही चाहिए, न दौलत चाहिए। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम में से सूरे हाम मीम की तिलावत की है और जैसे ही सूरे हाम मीम की तिलावत की है, उतबा बिन रबिया गौर से सुनने लगा। मेरे नबी तिलावत कर रहे हैं, उतबा बिन रबिया कांपने लगा, यहां तक कि उसका वजूद थर्राने लगा और उसका बेअख्तियार हाथ उठा और हुजूर के मुंह पे यूं रख दिया। कहा कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब इसके आगे ना पढ़ना, इसके आगे मुझे सुनने की ताकत नहीं है। उसके बाद उतबा बिन रबिया वहां से चला था, कुफारे मक्का के पास गया। कुफारे मक्का ने कहा, कहो उतबा बिन रबिया, क्या खबर लाए हो, क्या तूने मोहम्मद को मना लिया? उतबा बिन रबिया ने कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं एक ऐसा कलाम सुनकर आया हूं जो न कहानी है, न शायरी है, न कहावत है। वो ऐसा कलाम मैं सुन करके आया हूं कि उस कलाम को सुनने के बाद मेरा वजूद थर्रा गया। ऐ लोगों, अगर भलाई चाहते हो तो मोहम्मद को उनकी हालत पर छोड़ दो। ऐ लोगों, इस्लाम बढ़ता रहा, इस्लाम बढ़ता रहा, इस्लाम के मानने वाले बढ़ते रहे, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी गई। हजरात,
جب کوئی کسی مقصد کے لیے کہیں پر جاتا ہے تو مقصد حل ہونے کے بعد، کام پورا ہونے کے بعد وہ اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے کوئی یہاں سے پیہر سے بمبئی گیا کسی کام کے لیے، کام پورا ہو گیا تو پھر واپس پلٹ کر کے اپنے گاؤں گھر آئے گا۔ تو جب کوئی کسی مقصد کے لیے کہیں جاتا ہے تو مقصد پورا ہونے کے بعد اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا پیغام، خدا کا احکام بندوں تک پہنچا دینا، اور بندوں کے نفوس کا تزکیہ فرما کر کے انہیں خدا کے آگے جھکانا تھا، سجدہ ریز کرنا تھا، اور خدا کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا۔ یہی مقصد تھا پیغمبر کا دنیا میں آنے کا۔ جب حضور کا یہ مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج دین مکمل ہو گیا۔ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری پیغمبر کو سنائی گئی کہ دین مکمل ہو گیا، اور اے محبوب ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر پورا فرما دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، جس کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، اے لوگو شاید اب اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، یہ میرا آخری حج ہو۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ اذا جاء نصر اللہ کی آیت نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میری بیٹی مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، یعنی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ سیدہ فاطمہ جیسے سنتی ہیں زارو قطار رونے لگتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو نہ رو، اس لیے کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی۔ یہ منظر دیگر ازواج مطہرات نے دیکھا تو حضرت فاطمہ کو بلا کر کے پوچھا، اے فاطمہ کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہی تھی، پھر آپ ہنسنے لگیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا نے مجھ کو کہا کہ میری بیٹی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، یہی وجہ ہے میں رونے لگی۔ میرے ابو جان نے کہا میری بیٹی فاطمہ نہ رو، اس لیے کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرو گی، یہی وجہ ہے کہ میں پھر ہنسنے لگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کب سے علیل ہوئی؟ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے اور حضور اپنے گھر سے باہر نکلے۔ حضور اپنے پیشانی پر کپڑا باندھے ہوئے تھے اور حضور آہستہ آہستہ مسجد میں آئے اور ہم لوگ مسجد میں موجود تھے۔ حضور مسجد میں آنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے اور ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں قسم ہے رب کائنات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے ایک جملہ کہا کہ خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور آخرت کو پیش کیا گیا، دنیا اور دنیا کی زینت اور آخرت کو پیش کیا گیا، لیکن اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ جیسے میرے آقا یہ فرماتے ہیں اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، اتنا سنتے ہیں تو زارو قطار رونے لگتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ صحابہ حیران و پریشان ہیں کہ یہ ابو بکر کو ہو کیا گیا ہے؟
हुजूर तो एक आदमी की, एक बंदे की कैफियत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह का एक बंदा है जिसके सामने दुनिया की जीनत और आखिरत को पेश किया गया और उसने आखिरत को अख्तियार कर लिया, और ये रो रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हम और हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन याद रखो इस नबी के जुमले को सिवाय अबू बकर के कोई नहीं समझ सका, इसलिए कि बंदे से मुराद खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हजरत अबू बकर समझ गए कि मेरे हुजूर का अब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत कब अलील हुई? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफर का महीना, आप लग रहा है घबरा रहे हैं, बहुत पेटेंट बात है, इसे आप सुने और समझे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल कैसे हुआ। ये मालूमाती बात है, ये सिर्फ मुहर्रम में बताया जाएगा, तो गौर से सुने आप, हुजूर का ये विसाल कैसे हुआ ये मैं बयान कर रहा हूं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सफर का महीना खत्म होने में 1 या 2 दिन बाकी था तो हुजूर की तबीयत खराब हुई, यानी सर में दर्द हुआ। और हजरत सुलेमान तैमी जो सिकह लोगों में से हैं, उन्होंने इस बात पर जज़म किया है कि 22 सफर को हुजूर की तबीयत खराब हुई, यानी सर में दर्द हुआ, बुखार चढ़ा, और यही बीमारी जानलेवा साबित हो गई, जानलेवा साबित हो गई। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली को और हजरत फजल को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद मेरे आका कहते हैं, ए अली, ए फजल, मुझे मस्जिद नबवी शरीफ में ले चलो। हुजूर अपना एक हाथ हजरत अली के कांधे पे रखते हैं, दूसरा हाथ हजरत फजल के कांधे पे रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचते हैं। फिर मेरे आका ने हजरत बिलाल को बुलाया, कहा, ए बिलाल, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, ए लोगो चलो, मोहम्मद अरबी तुम्हें आज आखिरी वसीयत करने के लिए बुला रहे हैं, और मुस्तफ़ा की ये वसीयत आखिरी वसीयत होगी। हजरत बिलाल जैसे सुनते हैं आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मदीने की गलियों में भर्राई हुई आवाज में बिलाल ऐलान कर रहे थे, ए लोगो चलो, पैगंबर इस्लाम तुम्हें बुला रहे हैं, आखिरी बात सुनाने के लिए बुला रहे हैं, आखिरी वसीयत के लिए बुला रहे हैं। जैसे लोग इतना सुनते हैं सारे लोग घबरा गए, अपने दुकान मकान को उसी तरह खुला छोड़ दिया, मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी में सहाबा का ठाठे मारता हुआ मजमा था। ऐसे वक्त में मेरे आका मिंबर पर जलवा अफरोज होते हैं। मिंबर पर जलवा अफरोज होने के बाद एक फसीहो बली खुतबा इरशाद फरमाते हैं, और खुतबा देने के बाद मेरे आका लोगों को अहकाम शरिया बताते हैं, और फिर मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, दुनिया का अजाब बड़ा हल्का अजाब है, आखिरत का अजाब बहुत बड़ा अजाब है। दुनिया में अगर किसी का हक लिए हो तो उसका हक दे दो, दुनिया में किसी को सताए हो तो उससे माफी मांग लो, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है। अगर बंदा माफ करेगा तो परवरदिगार भी माफ फरमा देगा। ऐ लोगों, अगर किसी का मुझ पर कोई जानी हक हो, चाहे माली हक हो, तो आए अपने हक का मुझसे मुतालबा कर ले। पैगंबर ने जैसे इतना कहा है, अल्लाह अकबर, एक सहाबी मजमे में से खड़े हो गए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा बैतुल माल से हमने 3 दिरहम ले लिए थे। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तूने माले गनीमत में खयानत क्यों किया? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें 3 दिरहम की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने 3 दिरहम निकाल लिया था। मेरे आका हजरत फजल से फरमाते हैं, ए फजल, इनसे 3 दिरहम ले लो। जनाबे फजल उनसे 3 दिरहम लेते हैं और लेकर के बैतुल माल में रख देते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मुझ पर किसी का जानी हक हो, चाहे
चाहे माली हक हो तो आए अपने हक का वो मुझसे मुतालबा कर ले। इतने में हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अरे दिल तो नहीं चाहता था कि मैं इसका इजहार करूं, लेकिन आपने कह दिया है तो मैं इजहार करने के लिए खड़ा हो गया हूं। मेरे आका फरमाते हैं बताओ उकाशा क्या बात है। हजरत उकाशा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जंगे तबूक के मौके पे आप मुजाहिदीन की सफ़े लगा रहे थे, मैं सबसे जरा बाहर था तो आपने मेरी पुश्त पर एक कोड़ा मारा था। आप कोड़ा हाथ में लिए थे, आपका कोड़ा मेरी पुश्त पर लग गया था। मेरे आका फरमाते हैं उकाशा कहना क्या चाहते हो। जनाबे उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा है सहाबा कराम खड़े हो गए। कहा उकाशा क्या हो गया है? अरे हुजूर से तू बदला लेने की बात कर रहा है? उकाशा कहते हैं हाँ मैं बदला लूंगा। ऐसे मौके पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सलमान फारसी को बुलाते हैं, कहते ए सलमान फारसी जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर में मेरा कोड़ा मौजूद है, जाओ लेकर के आओ। हजरत सलमान फारसी बिनते रसूल के दरवाजे पे पहुंचे हैं, पहुंच कर कहते हैं ऐ बिनते रसूल सैयदा फातिमा जहरा, जंगे तबूक वाला कोड़ा मुझे दीजिए, पैगंबर इस्लाम ने मुझसे मांगा है। वो कोड़ा ला करके जनाबे सैयदा हजरत सलमान फारसी के हाथ में दे दिया। हजरत सलमान फारसी कोड़ा लेकर के मेरे नबी की बारगाह में आ गए हैं, हुजूर को कोड़ा हाथ में दे दिया है। उसके बाद मेरे आका उकाशा को बुलाते हैं, ए उकाशा ये कोड़ा ले, आप अपना बदला ले ले। अल्लाह अकबर, हजरत उकाशा आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए। कहा ए उकाशा तू हुजूर को कोड़ा लगाएगा? कहा हाँ मैं बदला लूंगा। हजरत उमर कहते हैं ए उकाशा, अरे एक कोड़ा के बदले 500 कोड़े मेरी पुश्त पर लगा ले, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ ना दे। ए उकाशा तुझे मालूम नहीं है कि हमारे नबी बीमार हैं? लेकिन उकाशा नहीं मानते हैं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। कहा ए उकाशा एक कोड़ा के बदले 1000 कोड़े मेरी पुश्त पर मार ले, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ ना दे। लेकिन उकाशा नहीं मानते हैं। हसनैन करीमैन आ गए। कहा ए उकाशा अगर कोड़ा लगाना है, जितना कोड़ा लगाना है मेरी पुश्त पर लगा ले, लेकिन मेरे नाना जान को कोड़ा ना लगा। ए उकाशा नाना जान बीमार हैं, लेकिन उकाशा नहीं मानते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ए उकाशा ये कोड़ा ले, आ बदला ले ले। हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं, मुस्तफा जाने रहमत के हाथ से कोड़ा हाथ में ले लिए हैं। मेरे आका फरमाते उकाशा आ बदला ले ले। हजरत उकाशा करीब आ गए हैं। सहाबा ज़ारो कतार रो रहे हैं। चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। अल्लाह अकबर, सूरज शर्म से मुंह ढांप रहा था, चांदो सितारे तड़प रहे थे, जमीन कांप रही थी। ऐसे वक्त में मेरे आका ने कहा उकाशा आ बदला ले ले। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आपने मेरी पुश्त पर कोड़ा लगाया था तो मेरे पीठ पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। या रसूल अल्लाह, पहले अपने कुर्ते मुबारक को ऊपर उठा दीजिए, तब मैं आपसे बदला लूंगा। अब तारीख बताती है कयामत तक ऐसा अदलो इंसाफ करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। मेरे नबी ने अपना कुर्ते मुबारक को ऊपर उठाया है। जैसे ही नबी ने कुर्ते मुबारक को ऊपर उठाया है, उकाशा की नजर रसूलुल्लाह के पुश्ते मुबारक पर मोहरे नबूवत पे पड़ती है। हजरत उकाशा का जिस्म कांपने लगता है, कोड़ा हाथ से गिर गया, जिस्म थरथराने लगा और उकाशा दौड़ करके मुस्तफा जाने रहमत के मोहरे नबूवत का बोसा लेने लगते हैं। मुस्तफा जाने रहमत के मोहरे नबूवत को चूमने लगते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ए उकाशा तूने ऐसा क्यों किया? मेरे आका जब फरमाते हैं ए उकाशा तूने ऐसा क्यों किया, तो रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अरे बदला लेना मकसद नहीं था, बल्कि मोहरे नबूवत की ज़ियारत करना मकसद था। मेरे आका, मैंने एक मौके पे आपको फरमाते हुए सुना है, जिसका जिस्म मेरे जिस्म से छू जाएगा उसके जिस्म को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। ऐ लोगों,
पैगंबर ने आखिरी वक्त में भी हुकूकुल इबाद के बारे में बता दिया ताकि उम्मत हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार न हो। क्या है भाई, क्या हुआ, सलाम पढ़ लिया जाए? तो खामोश रहो भाई, सुनो। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुकूक की दो किस्में हैं, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह ये अल्लाह के हक हैं, हुकूकुल इबाद ये बंदों के हक है। हुकूकुल्लाह जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह के हुकूक हैं। अल्लाह चाहे तो अपने सारे हुकूक माफ कर दे, चाहे तो गिरफ्तार कर ले। लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसा हुकूक है कि अगर हमने बंदे के साथ ज्यादती की, किसी को गाली दे दिया, किसी का माल हड़प लिया, किसी की जमीन बेईमानी कर ली, किसी दुकान पे उधार खा करके मर गए, नहीं दिए, तो ये हुकूकुल इबाद में बंदा गिरफ्तार हो जाएगा। इस गलती को, इस गुनाह को अल्लाह कयामत तक माफ नहीं करेगा। क्यों? जिसके साथ हमने ज्यादती की है वो माफ करेगा, तभी अल्लाह भी माफ करेगा। मेरे नबी ने आखिरी वक्त में हुकूकुल इबाद की अहमियत बंदों को समझा दी, अपनी उम्मत को, कि ऐ लोगों सुन लो हुकूकुल इबाद कितनी अहमियत है। मेरे आका ने फरमाया अतदरून मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा जानते हो कि सबसे बड़ा मुफलिस और कंगाल कौन है? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास सामान ना हो, वो मुफलिस है, वो कंगाल है। नबी ने फरमाया नहीं, फरमाया सुनो, कयामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा जो नेकियां भी लेकर के आएगा और साथ ही साथ वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार भी होगा। यानी किसी का उधार खाया होगा, नहीं दिया होगा, किसी की गिबत किया होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी के साथ बुराई किया होगा, वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होकर के आएगा। तो कयामत के दिन क्या होगा? एक बंदा हाजिर होगा बहुत सारी नेकियां लेकर, उहुद पहाड़ के बराबर नेकी। अब इतनी बड़ी नेकी लेके खड़ा होगा। कुछ लोग आ जाएंगे, मौला इसने मेरा उधार लिया था, नहीं दिया, मर गया था। अल्लाह फरमाएगा बताओ क्या चाहते हो? कहेगा बदला चाहता हूं। अल्लाह कहेगा इसके पास रुपया पैसा तो है नहीं, ऐसा है जाओ इसकी नेकी ले लो। वो उसकी नेकी लेगा, लेके चला जाएगा। फिर कुछ लोग आ जाएंगे, मौला इसने गाली दिया था, इसने गीबत की थी। अल्लाह फरमाएगा जा तू भी नेकी लेकर चला जा। इसी तरह लोग आते रहेंगे, उसकी नेकी लेकर जाते रहेंगे, सारी नेकी खत्म। पहाड़ के बराबर नेकी लेकर आया था, सारी नेकी खत्म। फिर कुछ लोग आ जाएंगे, मौला ये मेरा बेटा था, दुनिया में बड़ा सताया था, बहुत गालियां दिया था। अल्लाह फरमाएगा अब तो इसके पास नेकी नहीं है, अब लाओ तुम्हारे गुनाहों का बोझ उतार कर इसके सर पे लाद देता हूं। अब उसके गुनाहों का बोझ उठा करके उसके सर पे लाद दिया जाएगा। इसी तरह और लोग आएंगे, सारा गुनाह लोगों का उठाकर उसके सर पे लाद दिया जाएगा। अब कयामत के दिन गुनाहों की गठरी लेकर खड़ा होगा। अल्लाह फरिश्ते से हुक्म देगा, फरिश्तों ले जाओ, पकड़कर जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते ले जाएंगे, पकड़ करके जहन्नम में डाल देंगे। सच फरमाया मेरे आका ने, सबसे बड़ा मुफलिस और कंगाल वही है जो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होगा। वो सबसे बड़ा मुफलिस और कंगाल है। याद रखो, किसी का कर्जा लिए हो तो कर्जा वापस कर दो, वरना कयामत के दिन पकड़े जाओगे। बहुत से लोग कर्जा खा करके देना नहीं चाहते, उधार लेकर देना नहीं चाहते। किसी को गीबत किए हो तो उससे माफी मांग लो, किसी को सताए हो, थप्पड़ मारे हो तो माफी मांग लो, क्योंकि यहां की रुसवाई हल्की रुसवाई है, कयामत की रुसवाई बहुत बड़ी रुसवाई है। और याद रखो, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखो, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखो। बहुत से लोग जिंदगी भर नमाज छोड़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे, हज छोड़ेंगे, ज़कात छोड़ेंगे, बेईमानी मक्कारी करेंगे, और जब बूढ़े हो जाएंगे, ताकत नहीं रहेगी, तो सोचेंगे लाओ हज करके आओ, गुनाहों से पाक साफ होकर के हम आ जाएंगे। तो याद रखो, सिर्फ हज कर लेने से कोई गुनाहों से पाक और साफ नहीं हो जाता है।
बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि हज कर लेने से सारे गुनाह माफ नहीं हो जाते, बल्कि तुम हज करके अगर कोई बंदा आए और आने के बाद जो नमाजें उसकी छूटी थी वो नमाजों को कज़ा पढ़े, जितने साल का ज़कात नहीं दिया है जोड़ करके ज़कात दे, जितने साल कुर्बानी नहीं किया है जोड़ करके हर साल का एक बकरा सदका करे, जितना रोज़ा नहीं रखा है सारे रोज़ों का कज़ा करे और फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, माफ़ी मांगे, तब ये गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तब ये गुनाह माफ़ हो सकते हैं। सिर्फ हज कर लेने से ये सारे गुनाह माफ़ नहीं हो सकते, बल्कि आला हजरत फरमाते कि हाँ कोई हज करके आए, हज करके आया और वो कोशिश करता रहा कि हमारी नमाज जो छूटी है इसको कज़ा कर ले, जो हमने कर्जा लिया है वो कर्जा दे दे, जिससे हमने गलती की है उससे माफ़ी मांग ले, यानी ये कोशिश करता रहा लेकिन उसका इंतकाल हो गया। तो अब आला हजरत फरमाते हैं कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे बख्श दे, उसे माफ़ कर दे। लेकिन फरमाया वह लोग जो हज करके आए और वक्त भी पाया कि वो कज़ाए उमरी नमाज पढ़ सकते थे, जितने साल का रोज़ा छोड़ा था रख सकते थे, जितने साल माल से ज़कात नहीं दिया था वो दे सकते थे, फिर भी नहीं दिए, फिर भी नमाज कज़ा नहीं, फिर भी ज़कात नहीं दिया, फिर भी लोगों से माफ़ी नहीं मांगी और उसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहे, तो याद रखो ऐसे हज करने से किसी के गुनाह माफ़ नहीं होते। तो इसलिए ऐ लोगों, हुकूकुल्लाह में भी गिरफ्तार ना हो, हुकूकुल बाद में भी गिरफ्तार ना हो, इससे बचो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको हुकूकुल बाद से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत अलील थी और फिर क्या था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर में दर्द हुआ। जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं बैठी थी और हुजूर का सर मेरे रान पर था। इसी हाल में मेरे भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर आए, उनके हाथ में मिसवाक था। मेरे नबी उस मिसवाक को बार बार देख रहे थे। हजरत आयशा समझ गई कि हुजूर को मिसवाक बड़ा पसंद है। आपने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप अपने भाई से मिसवाक लेकर आपको दे दूं? हुजूर ने सर के इशारे से कहा हाँ। हजरत आयशा ने मिसवाक लेकर के हुजूर को दिया। हुजूर ने उस मिसवाक को चबाना चाहा, लेकिन हुजूर कमज़ोर हो गए थे, चबा न सके। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त दे तो मैं इसको नरम कर दूं। मेरे आका ने इजाज़त दिया। हजरत आयशा ने मिसवाक को नरम किया और फिर हुजूर ने अपने दांत पर मला। जिस दिन विसाल होना था, सुबह के टाइम हुजूर की तबीयत कुछ अलील थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, सीने में सांसों की घड़घड़ाहट महसूस हो रही थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर मेरे सीने से टेक लगाकर बैठे थे और बाहर दरवाजे पे हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अंदर आने की इजाज़त तलब की। हजरत जिब्रील अंदर आने की इजाज़त तलब किए। हजरत जिब्रील को आका ने इजाज़त दिया, अंदर आए और बाहर एक ऐसा फरिश्ता खड़ा था जो 1,00,000 फरिश्तों का सरदार था और 1,00,000 फरिश्तों में से हर फरिश्ता 1-1 लाख फरिश्तों का सरदार था। वो सोचो कितना बड़ा फरिश्ता था। बाहर दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा है। मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये दरवाजे पे कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है, अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा है। या रसूल अल्लाह, आज तक इसने किसी से इजाजत नहीं ली है और आपके बाद कयामत तक किसी से इजाजत नहीं लेगा। अब वो लोग सुने जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, तुम्हारे दरवाजे पर भी मौत का फरिश्ता आया है इजाजत लेने के लिए, कहो तो रूह निकालूं, कहो तो न निकालूं। ये नबी की शान है। दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा है, मजाल नहीं है कि अंदर दाखिल हो जाए, इजाजत तलब करता है। मेरे आका ने जिब्रील से कहा, जिब्रील उस फरिश्ते को बुला लो। वो फरिश्ता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में दाखिल हुआ, आकर के हुजूर को सलाम किया। हुजूर ने जवाब दिया, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी रूह निकाल लूँ, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो या
रसूल अल्लाह मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते क्या तू मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करेगा? वो कहता है हाँ या रसूल अल्लाह मुझे यही हुक्म दिया गया है कि अगर मेरा महबूब इजाजत दे तो रूह निकालना वरना वापस चले आना। हुजूर अगर इजाजत न देंगे तो वापस चला जाऊंगा। मेरे नबी ने जिब्रील की तरफ देखा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। फिर मेरे आका फरमाते हैं ओ फरिश्ते मेरी रूह निकाल ले। अब वो फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह निकाल रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मेरे हुजूर आसमान की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे ए अल्लाह मैं रफ़ीक़ आला में आना चाहता हूँ, मुझे रफ़ीक़ आला में कर दे। और फिर हुजूर के बगल में एक कटोरे में एक बर्तन में पानी था। हुजूर उस बर्तन में हाथ डालते, पानी निकाल कर अपने चेहरे पर मलते और कहते कि मौत में बहुत सख्तियां हैं, मौत में बहुत सख्तियां हैं। यही कहते कहते हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ लटक गए। हुजूर की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। जैसे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ सहाबा पे कयामत टूट गया, कयामत टूट गया, जिंदगियां उजड़ गई, लोग ज़ारो कतार रोने लगे, लोगों के होशो हवास खत्म हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हजरत उस्मान गनी की ये हालत हो गई कि उन पर सख्ता तारी हो गया। मस्जिद नबवी में बार बार आते जाते, किसी से नहीं बोलते। हजरत अली की ये हालत थी कि दीवार से टेक लगा कर बैठ गए, बोलने की ताकत न रही। हजरत उमर का ये हाल था कि मदीने की गलियों में तलवार लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे ऐ लोगों अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद अरबी का इंतकाल हो गया तो मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर में मौजूद थे। जैसे सुनते हैं हुजूर का विसाल हो गया है, वहां से दौड़े दौड़े भागे भागे सीधे मस्जिद में पहुंचे हैं। देखा कि सहाबा का अजीब हाल है, सहाबा ज़ारो कतार रो रहे हैं, किसी से बात ना की। सीधे हुजरे आयशा में पहुंचे और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से चादर उठाई है और फिर रोते हुए हुजूर के पेशानी का बोसा लिया, ज़ारो कतार रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का उन पर इतना बड़ा फजल था कि उनका होशो हवास बिल्कुल सही सलामत था। मस्जिद में आए, हजरत उमर मस्जिद में टहल रहे थे। हजरत अबू बकर ने कहा उमर बैठ जाओ। हजरत उमर ने इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं बैठूंगा। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जमा करके खुतबा दिया और कुरान की आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल थे, रसूल। और लोगों से कहा ए लोगों हुजूर से पहले भी बहुत से नबी इस दुनिया में आए, या उसमें से कुछ लोग इंतकाल किए या कुछ लोग शहीद कर दिए गए, तो क्या तुम उल्टे कदम फिर जाओगे? जिस तरह और नबी दुनिया में आए और चले गए, इसी तरह हमारे आका भी एक रसूल बनकर आए थे, वो भी चले गए। और फिर अबू बकर ने कहा ए लोगों कान खोल कर सुन लो, जो लोग मोहम्मद की इबादत कर रहे थे वो सुन ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, और जो लोग खुदा की इबादत करते थे वो भी सुन ले कि खुदा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आ सकती। हजरत अबू बकर ने ये आयत करीमा पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल थे। तो सहाबा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा हमने सुनी ना तो ऐसा लग रहा था कि ये आयत करीमा इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। लोगों को तसल्ली हुई, हल्की सी तसल्ली हुई, लोगों के जान में जान आया। हजरत उमर कहते हैं मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि हुजूर का विसाल हो गया, लेकिन जब अबू बकर ने ये आयत करीमा पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तब मुझे यकीन हो गया कि यकीनन आका का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि जब मुझको यकीन हो गया मेरा जिस्म कांपने लगा, मेरा वजूद थर्राने लगा, मैं ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि हुजूर का विसाल हुआ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के खुतबे ने लोगों को बचा लिया, वरना बहुत से लोग इस्लाम छोड़ देते। इसलिए वो लोग कह रहे थे कि जब
محمد نہیں تو اب ہم کیا رہ کے کریں گے؟ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں، اگرچہ میرے آقا انتقال کر گئے ہیں لیکن ان کا مشن لے کر کے چلنا ہم لوگوں کا کام ہے۔ حضور کا وصال ہوا، سوموار کے دن حضور کا انتقال ہوا تھا، اب شام ہو گئی اس لیے اس دن جنازہ نہ ہو سکا، منگل کا دن آ گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دفن کیا جائے، کیسے جنازہ پڑھا جائے، اور حضور کا مدفن کہاں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف میں حضور کی قبر مبارک ہونی چاہیے، کچھ صحابہ نے کہا کہ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں حضور کا مزار ہونا چاہیے، کچھ صحابہ نے یہ رائے دیا کہ بیت المقدس میں حضور کا مزار بننا چاہیے، اس لیے کہ بیت المقدس میں بہت سارے انبیاء کرام کی مزار ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو سنو، ہر نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں پہ وہ انتقال کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے برکت اور سب سے مبارک وہ زمین ہے جہاں پہ اللہ کا رسول انتقال کرتا ہے۔ یہ دونوں صحابہ کی گفتگو سننے کے بعد صحابہ کا یہ اتفاق رائے ہو گیا کہ حضور پاک کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ حضور کو نہلایا جائے یا اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو غیب سے ایک آواز آئی، اللہ کے رسول کو غسل نہ دو، اللہ کے نبی پاک ہیں، ان کو اسی طرح دفن کر دو۔ تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ لاؤ اس غیبی آواز پر عمل کر لیا جائے اور حضور کو غسل نہ دیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غیبی آواز لگانے والا کون ہے؟ جب کوئی پتہ نہیں ہے تو اس غیبی آواز پہ ہم عمل نہیں کریں گے، ہم اسلام کے طریقے کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلامی طریقے سے حضور کو غسل دیں گے۔ تب تک دوسری اور غیبی آواز آئی، اللہ کے رسول کو غسل دو۔ پہلی آواز جو تھی نا وہ ابلیس کی آواز تھی، اور دوسری آواز جو تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام کی آواز تھی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کا پلان بنایا گیا۔ اب پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور کو کیسے غسل دیا جائے، حضور کے پیراہن مبارک میں غسل دیا جائے کہ حضور کو برہنہ کر کے غسل دیا جائے۔ تو پھر ایک آواز آئی، اللہ کے نبی کو برہنہ نہ کرو، ان کے کرتے مبارک پیراہن مبارک ہی میں غسل دیا جائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کا ارادہ بنایا گیا۔ لیکن اب پھر سوال اٹھا کہ حضور کے لیے کون سی قبر کا انتخاب کیا جائے، بغلی قبر کھودا جائے یا صندوقی قبر کھودا جائے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں دو لوگ قبر کھودتے تھے، ایک حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ دو صحابہ تھے جو قبر کھودنے کا کام کرتے تھے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا، ایسا ہے کہ یہ دونوں حضرات کے پاس ایک ایک آدمی بھیجا جائے اور کل جو سب سے پہلے آئے وہی قبر تیار کرے گا۔ تو دوسرے دن جو سب سے پہلے جو صحابی آئے تھے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، اس لیے انہوں نے بغلی قبر حضور کے لیے تیار کیا۔ اب جب غسل دینے کی باری آئی، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قسم ابن عباس یہ مل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیتے تھے۔ حضرت حوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹکے میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے، حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ جب حضور کو غسل دے دیا، حضرت علی نے کیا دیکھا، حضور کے ناف مبارک پر اور پلکوں پہ پانی کے چند قطرے تھے۔ تو حضرت علی جوش عقیدت میں ان پانیوں کو چوس لیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب وہ پانی کو میں نے چوس لیا تو میرا علم اور بڑھ گیا، میرا حافظہ اور قوی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تیار ہوئی۔ اب جنازے کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے ہی حضور کا بھی جنازہ ہوا تھا، اور جب حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تھے
تو حضرت ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ ولی کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک روایت تو یوں ہے اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ عام لوگوں کی طرح حضور کا جنازہ نہیں ہوا، بلکہ گروہ در گروہ لوگ آتے اور حضور پر درود و سلام پڑھ کر کے چلے جاتے تھے، اور یہ زیادہ کبھی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات ظاہری میں فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرا جنازہ تیار ہو جائے، میرے جنازے کو میرے حجرے میں رکھ دینا، سب سے پہلے جبریل امین آئیں گے، وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر اسرافیل آئیں گے، پھر اسرائیل آئیں گے، پھر گروہ در گروہ فرشتے آئیں گے، پھر مومنین آئیں گے۔ تو غرض یہ کہ یا تو نماز جنازہ پڑھا گیا یا تو درود و سلام پڑھا گیا، اور منگل کے دن تقریباً شام کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ زارو قطار رو رہے تھے، ان کی عجیب کیفیت تھی، وہ اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ عائشہ میں رہتی اور زارو قطار حضور کے غم میں روتی رہتی، صحابہ روتے رہے۔ حضرت بلال کا یہ حال تھا کہ مدینہ چھوڑ کر کے وہ جدائی کی برداشت تاب نہ لا کر کے شہر حلب کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں چلے گئے، اور حضور کے پاس ایک گدھا تھا، حضور جس پہ سواری کرتے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر کے جان دے دیا۔ جب حضور نہیں رہے تو میں رہ کے کیا کروں گا؟ اے لوگوں، اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ حضور کے وصال کے بعد پھر خلیفہ کون بنا، خلیفہ اول بننے کا کس کو شرف حاصل ہوا، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ آج کافی